تو فرماتے ہیں کنت علیہ الا لنعلم، وہ قبلہ ہم نے کس لیے پہلے آپ کو دیا کہ بھائی آپ اس طرف عبادت کرتے رہیں، سوائے اس کے نہیں کہ ہم یہ جان سکیں۔ یہاں لنعلم میں جو ہے نا معرکہ ہے، تاکہ ہم کیا کریں، جان سکے۔ اے اللہ لنعلم کہہ کر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ جان سکیں، بھائی آپ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے، یہ معلومات کرنے کے لیے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، آپ نے وہ قبلہ قرار دے دیا۔ اللہ کے حوالے سے لنعلم کا استعمال کیسے ممکن ہے؟ ہو یہاں ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں، وہ پہچان لیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پہچان لینے کا مطلب تو یہی ہے کہ عدم علم کی گواہی دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اس طرح کیا کرتے ہیں، علم حاصل کر لیں گے، معلومات ہمیں ہو جائیں گی۔ تو یہ ترجمہ اس میں ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی تمام، یعنی میں صرف مثال دیتا ہوں، آپ ساری تفسیریں دیکھیں گے یہی لکھا ہوا ہوگا، اور اسی طرح ترجمہ کر کے کہ بھائی علم، اور پھر بعضوں نے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش بھی کی ہے، میں ابھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی بعض نے ان کو بھائی یہاں علم سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں یہاں اس تفسیر میں ترجمہ تو تقریباً وہی ہے جو اس پچھلی میں ہے، جس میں ترجمے کا لفظ ہے کہ ترجمہ کر میں ایک دوسری تفسیر سے، تاکہ آپ دوستوں کے ذہن میں آ جائے۔ اور جس قبلہ پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم الگ کر دیں، الگ کر لینا۔ علامہ کا معنی انہوں نے کیا کیا ہے، الگ کر دیں، کیونکہ معنی ان سے بن نہیں رہا تھا، انہوں نے آگے وضاحت کی ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ الگ کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جو پیٹھ پیچھے پھر جانے والے ہیں۔ نعلمہ کا معنی انہوں نے الگ کیا ہے، الگ کر دینا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے الگ کر دینا؟ اس لیے کہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے اس کا جو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے حوالے سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالم یا علموں کے معنی جس طرح جان لینے اور معین کر لینے کے ہیں، اسی طرح اس کے معنی ممیز کر دینے، چھانٹ کر الگ کر دینے کے اور ظاہر کر دینے کے بھی ہیں۔ ہاں جی، یعنی اصلاً اس کو اور طرف لے گئے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے چھانٹی کرنے کے لیے اللہ نے۔ نعلمہ کا معنی یہ ہے کہ آپ چھانٹی کرتے ہیں، عالم یا علموں کا ایک معنی انہوں نے یہ بھی بنا دیا ہے کہ جیسے چھانٹی کرنا، تو جب کہ یہ معنی ہے نہیں، چھانٹی کرنا عالم یا علمہ کا معنی نہیں ہے۔ نتیجہ ہو سکتا ہے علم کے بعد کہ آپ کا نتیجہ یا اس کا لازمہ جو ہے وہ چھانٹی ہو جائے، لیکن معنی اس کا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن میں اس حوالے سے 3 لفظ ظاہراً ابھی 3 لفظ میرے سامنے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، یا علمو، یا اکیلو، اور یظنو۔
यालमो या अकेलो और यज़ुन्नो भी तकरीबन इल्म का ही माना देता है कुरान में। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ जैसे है, या दूसरे बहुत सारी जगह पे ज़न्ना का माना तकरीबन इसी इल्म के करीब का माना है, लेकिन इन तीनों में फ़र्क है। हर एक का एक माना है और उसी माना में ही खुदाए करीब लेता है। जब कोई बात दूसरा करता है या कोई भी चीज़ होती है तो इंसान की तरफ उसका जो समझ आती है, जो उसकी मालूमात इंसान तक पहुँची है, उसके 3 दर्जे होते हैं या इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। खुद इल्म के बाद फिर इल्म के 3 दर्जे, लेकिन इल्म है, अक्ल है और ज़न है। ज़न की कैफियत ऐसे होती है कि बंदे को मालूम हो जाती है, बात का पता होता है, लेकिन उसमें अभी सवाल की गुंजाइश होती है, समझ में कुछ मालूमात कम होती हैं। ज़न में समझ में कुछ मालूमात कम होती है। जैसे कि जब इंसान मरने लगता है तो उसको वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ कुरान की आयत है कि उसको पता चल जाता है कि अब ये इसके जुदाई का टाइम है, यानी मौत का टाइम है। हाँ, ज़न्ना इसलिए यहाँ इस्तेमाल किया है कि वो उसको पता है अब मरना है, अब मज़ीद इसके बाद मज़न आखिरी हालात में पहुँचा हुआ है, तो उसको पता है मरना है, लेकिन अभी भी मौत की सारी मालूमात उसके पास नहीं है, सारी समझ नहीं है कि ये कैसे होगा, मरेगा तो क्या हो जाएगा, या उसके क्योंकि उसके बाद वाली या उसके ऐन मौत के टाइम के सारे हालात उसको नहीं मिला। ये उसको 100% पता है कि वो मरने वाला है, अन्नहुल फ़राक़, ज़न्ना अन्नहुल फ़राक़, लेकिन नहीं। तो ये इस किस्म की कैफियत है। तअक्कुल जो है, जहाँ या अकेलून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हाँ, अफला या अकेलून, या इसी तरह एक और लफ्ज़ है, उसको अभी नहीं छेड़ते, याकिल का लफ्ज़ ले लेते हैं। याकिल ये उस वक्त होता है जब इंसान को समझ सारी आ जाती है, बात पूरी कैफियत इंसान को मालूम हो गई है, लेकिन उसके लिए दलाइल उसके पास नहीं है। अगर उसको कहा जाए कि कैसे आपको पता है कि ये ऐसे होगा, मिसाल के तौर पर आप किसी पढ़ने वाले लड़के के उसके साथ इंटरव्यू करते हैं, हालात देखते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा, या आप कहते हैं कि ये मुझे पता है कि ये मुजरिम ही बनेगा। ये आप तअक्कुल कर चुके हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्या दलील है जी, ये आप कैसे कह रहे हैं, तो आप दलील कायम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अभी टाइम पड़ा है, पता नहीं क्या है, आगे आपको कैसे उसको कायल करेंगे दूसरे को। तो आपके पास दलाइल नहीं है, आपके पास दलाइल नहीं है, तो ये ताक़ुल है। ज़न और ताक़ुल का लफ्ज़ अल्लाह के बारे में इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ है। अल्लाह के बारे में पूरे कुरान में कभी भी ये नहीं है कि ज़न्ना या यज़ुन्नो या अकेला या अकेलो या इस तरह का लफ्ज़ कभी भी कुरान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं, इसलिए कि यहाँ क्या है, एक कमज़ोरी का पहलू मौजूद है। लेकिन इल्म क्या होता है? इल्म ये होता है कि आदमी समझ भी ले और समझ की जो दलाइल हैं वो भी बिल्कुल वाज़ेह और सामने हो, पता भी हो और पता होने की जो दलाइल हैं वो सामने हो। यहाँ इसी तरह खुदा करीम फरमा रहा है कि हमने लेना अलामा, पता तो हमें था, लेकिन लेना अलामा यानी उसके जो दलाइल है वो भी कायम हो जाए। दलाइल कायम कब होंगे? कि जब अमल करने वाले अमल कर चुके होंगे और बेअमले अमल से हट चुके होंगे, तो अब दलील बन जाएगी, ये कायम हो जाएगी कि भाई हाँ जी, ये जो इल्म है मबनी है इस तजर्बे पर, मबनी है इस दलील पर, क्या कि जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मानी फरमा बरदारी की वो ये है, और जिन्होंने नाफरमानी की वो ये है। इसलिए अल्लाह ने कहा लेना अल्लामा, ताकि हम जान लें।
लिनालमा यानी अपने जो हमारा इल्म है, जो उसकी दलील है वो भी मुस्तहकम कायम हो जाए दो तरफ़ा, यानी उनको भी बताने के लिए पता हो। उनमें से कोई ये नहीं कह सकते कि हमने नाफरमानी नहीं की है, हमने इत्तिबा की है। और अगर किसी ने इत्तिबा की है वो भी बिल्कुल पता है उनके अमल से, और जिन्होंने इत्तिबा नहीं की है वो भी पता है उनके अमल से। बस इल्म वहाँ होता है जहाँ उसके दलाइल का है। और ये सिर्फ इस आयत में नहीं है, दूसरी आयत में मैं आपको बता देता हूँ, या बहुत सारी आयत है, बहुत सारी आयत। इंशाअल्लाह इसके बाद जब भी कोई आयत देखें जहाँ ये मादा इस्तेमाल हो आलिमा, तो वहाँ देखें कि वहाँ दलील ज़रूर होगी, और दलील के साथ। जैसे उस आयत में है वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, हम आपको इब्तिला में डालते हैं ताकि जान लें कि आप में से मुजाहिदीन कौन है और आप में से साबिरीन कौन है। और इब्तिला में डालने के बाद ही पता चलेगा ना, जब इब्तिला में डालेंगे, इब्तिला से वो इम्तिहान में डालने के बाद, इम्तिहान से जब वो कामयाब हो के निकलेंगे तो पता चल जाएगा। यानी अब पता चलेगा। इल्म तब होगा जब उसकी दलील पहले से कायम हो चुकी होगी। दलील से पहले क्या होता है? तअक्कुल होता है, सिर्फ पता होता है आपको कि ये काम ऐसे ही होना है, लेकिन जब तक आप उसकी दलील सामने दूसरे के नहीं रख सकते हैं और उसका जो सारे मुकद्दमात हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं, तो फिर सिर्फ तअक्कुल है, इल्म नहीं है। और तफक्कुह भी एक और लफ्ज़ है, वो भी तकरीबन इसी के साथ है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गहराई में जो है वो तअक्कुल है, बेगहराई, यानी गहराई के साथ तअक्कुल, ज़रा गहरे अंदाज में और ठीक ठाक समझ के साथ है। लेकिन मुमकिन है कि उसमें भी दूसरों के लिए दलील कायम करने की सूरत हाल तफक्कुह में भी ना हो। फ़िक़्ह खुद समझने को कहते हैं, खुद समझने को कहते हैं, और तफक्कुह भी इसी तरह। तो ये जो अल्फाज हैं इनका यहाँ भी इस आयत में भी खुदा करीम फरमाता है वमा जालनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा, ताकि हम अपनी बात को इल्म के साथ करार दें, यानी दलील के साथ हमारे पास ये बात मौजूद हो कि जो मानने वाले हैं वो कौन से हैं और जो न मानने वाले हैं वो कौन से हैं।